नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। भारत और म्यांमार के अधिकारी इम्फाल मांडले बस सेवा योजना के लिए सड़क सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से रविवार को इम्फाल पहुंचे। पड़ोसी देश म्यांमार से करीब 10 अधिकारी 11 जनवरी से 15 जनवरी तक इम्फाल से मंडेला तक 579 किलोमीटर लंबी सड़क का सर्वेक्षण करेंगे। सड़क का सर्वेक्षण म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर यू तांग तो आउंग के नेतृत्व में किया जा रहा है। वहीं टीम में लोक निर्माण, रेल मंत्रालय, म्यांमार यातायात पुलिस फोर्स और निर्माण मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल है। मणिपुर सरकार में परिवहन सचिव लक्ष्मी कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से पहले ही म्यांमार सरकार को बस सेवा के बारे में ड्राफ्ट रिपोर्ट भेज दी गई है और अब म्यांमार सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बस इम्फाल से मंडेला तक 579 किलोमीटर का सफर 14 घंटे में तय करेगी। हालांकि अभी इसका किराया तय नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक किराया 2000 रुपए से कम ही रखा जाएगा। इसके साथ ही दोनों तरफ से यात्रियों को वीजा ऑन अराइवल दिया जाएगा। इस बस सेवा के शुरू होने से दोनों देशों के बीच न केवल संबंधों को मजबूती मिलेगी बल्कि उस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा मिलेगा। This is a very important step because in any case this stretch of road about 579 this has got so many stretches, so many portions, so many this thing which require special attention. I think this is the right step forward towards that, and once this is done, I think we can say that I think protocol finalization is almost through. And these are all technical matters, and once technical matters are fulfilled, I think the protocol should not be a problem. So I think more or less we are at the final stage, final leg of the protocol agreement. But for the last many years, the Myanmaris has been a bit reluctant of having the visa on arrival. That is one part. Once the bus service do started, this will become one of the major core issue for the visitors from the Myanmar to India as well as India to Myanmar. So, do you really think in the process this is all going to be taken? No, I don't think there should be any issue like that because this has been taken up at the highest level. These are all, since both the bilateral considerations are there, that has been already taken care of. That's why this whole thing about this bus service was taken off. So I think there shouldn't be any issue like that, and we should come on the way. So how many teams from Myanmar has come down over here, and how many teams for the government, representing government? There are 10 altogether from Myanmar side. Then there are 3 from Government of India side, including 1 from MEA. Then there will be 2 will be also joining from Manipur side, Manipur government side. All on technical side, one additional chief engineer, PWD, and 1 officer from the transport department will be joining the team. So it will be a very fruitful kind of a joint inspection. I think this should be a very good, purposeful one. I am from Myanmar. Your good name, please? Your name? My name is Tan Tu Aung. So, you have come down over here to have a joint survey team about the road connectivity from Mandalay to Imphal. Yeah. To start up the bus services out here. Yeah. Sure. As of to now, the technical session, during your whole course coming from your country to reaching to the More, what was the difficulty that you have been facing? Not too different. Huh? Difficulty is different is the temperature difference. Huh? Okay. Our country is hotter than yours here. Okay. So now, how soon do you really think this whole provision will start materializing into action? I am very happy with that because in this program is India and Myanmar transportation program. So past transportation. So I am very happy with that. So the part of your country is better known to you, and how do you think about the Manipur road? The road in India? Road in India and Myanmar is not totally different. Naturally, it's same, but our country, according to the weather condition, our condition have all weather road and not all weather roads. So it's a different. So we are choosing about that. एपीपीएससी पेपर लीक मामले में पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल कर रही उजुम परिंग ने हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन मांगे पूरी ना होने तक धरना जारी रखने का फैसला लिया है।
उजुम परिंग ने बताया कि भले ही उन्होंने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इस बार धरने में उनके साथ 4 और लोग शामिल हो गए हैं। परिंग ने कहा कि उनकी लड़ाई हर उस शख्स के लिए है जो भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जिनका खराब एजुकेशन सिस्टम की वजह से भविष्य अधर में पड़ गया है। बता दें कि आवेदक अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर ली गुताचो और आयोग के सदस्य मामंग दाई को पद से हटाने, साथ ही APPSC की परीक्षा दोबारा करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। कल आप RKM में एडमिट हो गई थी तो वहाँ के डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। हाँ, शुरुआत में तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन अभी मैं अच्छी फील करी। अभी आप ठीक ठाक हैं? जी हाँ, ठीक है। आप ये बताइए कि जो हंगर स्ट्राइक आपने किया और अभी भी आपके साथ काफ़ी सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट भी काफ़ी देखा जा रहा है, सोशल मीडिया में भी आपको काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपका ये जो इस पूरे मामले में, और इसके चलते क्या आपको लगा कि वाकई में जो राज्य सरकार है और कमीशन के ऊपर कुछ तो प्रेशर आया? जी हाँ, अगर प्रेशर नहीं आता था वो हमें कल नहीं बुलाते हैं, चीफ सेक्रेटरी हमें कल नहीं बुलाते बात करने के लिए। प्रेशर तो ज़रूर आया उनको भी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी जो हमारा डिमांड है वो ज़रूर फुलफिल होगा। आपने जो डिमांड रखी है चेयरमैन को हटाने की और मेंबर जो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो आज जो है गवर्नर की तरफ से भी स्टेटमेंट है, गवर्नर ने इस पूरे मामले में इंटरवीन किया और राज्य सरकार को सीधे निर्देश दिया कि वाकई प्रेसिडेंट जो इंटरवेंशन वो ज़रूरी है या नहीं। आप इस मामले से कितने उनके इस स्टेटमेंट से कितने संतुष्ट हैं आप? जब हमारा पेपर लीकेज का हमें पता चला था, सबसे पहले तो जिस दिन पता चला उसी दिन हम लोग गवर्नर के पास ही गए थे। गवर्नर अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिल पाए, लेकिन हमने उनके कोई सेक्रेटरी से मिले थे। तो तभी हमने सोचा था, हम बहुत पॉजिटिव थे तब भी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे ही एक्शन लेंगे, लेकिन चलो भले ही देर से ही सही अगर गवर्नर ने ऐसे कुछ कहा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात है। इसका मतलब यही है कि अभी फाइनली सभी हमारा जो डिमांड्स हैं जो हम कर रहे हैं उस पर अटेंशन दे रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो अगर आपकी डिमांड सुन ली जाती है, मान ली जाती है, और मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप भी किया, तो आपको जो एग्ज़ाम्स हैं आपने टाइम लॉस किया है और पैसा भी काफ़ी बर्बाद हुआ है, तो उसकी भरपाई के लिए आप क्या कुछ चीफ सेक्रेटरी को कुछ ऐसा मेमोरेंडम देंगे कि कुछ किया जा सके ताकि एज रिलेक्शन जैसा मामला जो है वो सामने आ सके? एज रिलेक्शन का मामला तो शायद वो तो जिन्होंने फॉर्म भर चुका है, जो फॉर्म में एज है वही होगा। अभी तो एज रिलेक्शन का मामला तो वैसे कुछ इतना बड़ा इशू है नहीं यहाँ पे। जो टाइम बर्बाद हुआ हमारा, जो पैसा बर्बाद हुआ, अगर हम लोग कुछ मेमोरेंडम सबमिट भी करते हैं तो वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको पहले से ही सोच लेना चाहिए था, सिस्टम ऐसे ही बनाना चाहिए था ताकि जो एस्पिरेंट्स है उनकी मेहनत पे, उनकी जो मेरिट है उसके हिसाब से उनको जो भी पोजीशन मिलता है, अगर वो लोग क्लियर करते हैं नहीं करते हैं उस पर वो होना चाहिए था। लेकिन हमारा जो पैसा बर्बाद हुआ, जो हमने एनर्जी वेस्ट किया, कितने साल हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ, और जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के जो यहाँ पे धरना बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, जो हमने प्रोटेस्ट रैलीज निकाली, वो तो एक्स्ट्रा अननेसेसरी, अगर सही तरीके से होता तो ये सब तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो हमने किया उनको तो अभी ये भरपाई तो कभी कर नहीं पाएंगे। पैसे से अगर हमें पैसे भी देते हैं तो भी कभी होगा भी नहीं वैसे, क्योंकि जो हमने जो दिलो जान से हमने जो लड़ाई किया वो हमारे लिए हाँ कभी ना एक सीख है हमारे लिए, इनफैक्ट पूरे सोसाइटी के लिए, ताकि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें क्यों ये सब हम क्यों होने देते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप को पूछना चाहिए ये सब इस सिस्टम को हम लोग क्यों एक्सेप्ट करके बैठे हैं। पहले तो हमें ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए ताकि आगे भी ये सब करने की ज़रूरत न पड़े। तो इस समय मैं ठीक IG पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले उजुम परिंग ने 96 आवर्स का जो अपना हंगर स्ट्राइक है उसको ख़त्म किया है, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि वाकई में जो प्रेशर जो था वो थोड़ा बहुत ज़रूर पड़ा है राज्य सरकार में। और जहाँ तक गवर्नर यहाँ के राज्यपाल की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है, उन्होंने इस मामले में इंटरवेंशन किया हुआ है, हस्तक्षेप करते हुए जो एडवोकेट जनरल की राय मांगी है और राज्य सरकार को साफ निर्देश दिया है कि वो एडवोकेट जनरल
क्या रेफरेंस ले, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी थोड़ी कल के दिन स्टेटमेंट जारी करते हुए ये भी कहा है कि एडवोकेट जनरल की राय जो है वो मांगी जाएगी कि वाकई में प्रेसिडेंट जो हस्तक्षेप है, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनका हस्तक्षेप इस मामले में ज़रूरी है या नहीं। कैमरामैन राहुल गमांग के साथ अभिनव वर्मा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और अरुणाचल प्रेस फ्रेटर्निटी ने पेरिस में हुए नरसंहार में फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली एब्दो के पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ईटानगर के अरुणाचल प्रेस क्लब में सोमवार को अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और अरुणाचल प्रेस फ्रेटर्निटी के सदस्यों ने आतंकवादी हमले में मारे गए पत्रकारों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उनकी बहादुरी को सलामी भी दी। आपको बता दें कि बुधवार को फ्रांस की पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमले में 12 पत्रकारों की मौत हो गई थी। I think this act again reminds us of the fact that no matter what we do, there will always be radicals, there will always be terrorists, there will always be people who disagree with us, and to show their disagreement, people are willing to go to any lengths. But that should not stop us, because like the publishers of Charlie Hebdo, just a week after their office was attacked and 12 journalists, 12 cartoonists, satirists were killed, they still went ahead and published the next edition. I think that's an inspiration for us to continue our work regardless of the threats, because what we do is essential to society. Society needs us to continue our work. 11 media assistants and 19 citizen journalists. So that's a total of 96 people related to the press who were killed last year alone. Let us also remember today those 96 who died trying to disseminate information, trying to spread truth, trying to bring to the world what the world needs to know, but often does not want to know. अरुणाचल प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम में रविवार को अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी की 64वीं मासिक बैठक की गई। हर महीने होने वाली अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी की बैठक में राज्य भर से साहित्यकार हिस्सा लेते हैं और अपनी क्रिएटिविटी साझा करते हैं। सोसाइटी की बैठक में साहित्यकारों के साथ साथ आम जनता भी हिस्सा लेती है। इस बार यामिन जिर्दो नामक महिला ने गालो भाषा में फूलों पर कविता सुनाकर सबका दिल जीत लिया। वहीं उनके पति डॉक्टर टी जिर्दो ने भी अंग्रेजी में कई कविताएं सुनाई। इसके अलावा लेखक आर.के. कोले ने बंगाली में सब देखो नाम की कविता सुनाई। समारोह के अंत में अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के अध्यक्ष वाई.डी. थोंगची ने सोसाइटी में शामिल हुए नए सदस्यों का स्वागत किया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित डेरा नातू गवर्नमेंट कॉलेज में 5 दिन से चल रहे इंटरनेशनल गर्ल्स दिवस समारोह का सोमवार को समापन हो गया। समारोह का आयोजन सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन ईटानगर के तहत हेड ऑफ गर्ल एजुकेशन द्वारा किया गया था। उत्सव में अरुणाचल प्रदेश के 16 विभिन्न जिलों से लगभग 298 छात्रों ने भाग लिया था। समारोह में खेल, साहित्यिक प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद आईपीआर और शिक्षा विभाग के संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स ने कहा कि आज के समय में लोग शिक्षित हैं, इसलिए बाल विवाह जैसी चीजों में भारी कमी आई है, जो कि विकास के लिए अच्छा कदम साबित होगा। बामंग फेलिक्स ने मौजूदा छात्राओं को कहा कि वो किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने से न चूकें। समारोह के अंतिम दिन शिक्षा विभाग के सचिव आर.के. मिश्रा भी मौजूद थे। So you have to equipped, अब आप लोग को इक्विप करना है कि जो भी आओ, आंधी आओ, तूफान आओ, मैं खुद जिंदगी जी लूंगा। एजुकेशन इज द ओनली ऑप्शन। अगर आपका एजुकेशन बाई चांस फेल तो ना हो तो अच्छा है, फेल हो गया तो आपका खेल कूद भी आपका एक जिंदगी का सहारा बन सकता है। इसलिए खेल कूद को भी आप सीरियस लेना बहुत जरूरी है। दिस इज योर ऑप्शन, बट दिस इज नॉट योर ऑल्टरनेटिव, जस्ट एन ऑप्शन। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, खेल कूद आप अगर आप दौड़ना आता है, दौड़ने में आप प्रोफेशनली लीजिए। अब नचना आता है, गाना आता है, उसको आप प्रोफेशनली लीजिएगा। जिंदगी में कल आप उठते जाएंगे। I tell you today, teachers, if somebody asks me who is the most powerful man on this earth, I tell he is none other than the teachers. Why you are powerful? You made the people unable to reach moon.
You enable the people reach inside the ocean. You enable to make the world from ancient to medieval to modern age, and today ultra modern age. किसने बनाया है? गुरुजी ने बनाया है. My dear teachers, please take up your job as a missionary zeal, a mission to produce, to create human resource, nothing else. Because of your irresponsibility towards your duties, please do not create incomplete human being. त्रिपुरा के अगरतला में रविवार से मणिपुर के मेइती समुदाय के मुख्य त्योहार पुथिबा लाई हारो ओबा की शुरुआत हो गई है। अगरतला के अभय नगर स्थित पुथिबा देइती टेम्पल ग्राउंड में 5 दिन तक यह त्योहार मनाया जाएगा। पुथिबा लाई हाराओबा त्योहार को समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से रूबरू करवाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। त्योहार को त्रिपुरा में इसलिए मनाया जाता है ताकि मणिपुर के जो लोग वहां रहते हैं वो भी मणिपुरी त्योहारों का लुत्फ उठा सके। सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री भानुलाल साहा ने मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह का उद्घाटन किया। मौके पर लोकसभा सांसद जितेंद्र चौधरी, पार्षद गोपाल देवनाथ, मणिपुरी साहित्य परिषद के महासचिव आर.के. जितेंद्र सिंह सहित कई हस्तियों ने शिरकत की थी। जितेंद्र चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि त्रिपुरा में विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोग सद्भाव और शांति से रहते हैं, इसलिए यहाँ सभी त्योहारों को सामाजिक त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम भी दर्शाए गए थे। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ ये जो उत्सव होता है ये हर साल ही होता है और बहुत अच्छा होता है। और यहाँ थांग उत्सव भी होता है और हमारे शॉर्ट लीला भी होता है और हमारे जो थवन चोंगबा है वो जंपिंग डांस है, तो हम लोग ने भी बहुत एंजॉय किया और डांस करने में भी। और हमारी ये जो मणिपुरी ट्रेडिशनल डांस है बहुत अच्छा ही लग रहा है हम लोगों को ये डांस कर। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।